start, so as you know the format, I just welcome you and then you have a conversation. I think we're already streaming on Facebook. So now, so namaste, Kuldeep ji. नमस्ते आपको भी जेरी साहब और इटू जी And good evening, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, and welcome to the InspireX conversations that we have with our Karmavir Award recipients every Monday. And you, of course, are a Karmavir Puraskar Award recipient and a Karmavir Maharatna. You have been part of the journey for a long time after Mark nominated you, Mr. Mark Parkinson. है ना? Thank you so much. Yes. Do you want to just turn your phone, like, you know, make it horizontal? Then. Okay, 1 minute. Yeah. Then we'll be able to see more of you. Yeah. Better. Yes. Right. So the basic idea of the InspireX conversation is that we do this every Monday with Karmavir Puraskar Award recipients like you. And the idea is to inspire all our participants and people who log in to understand how they can kind of live their passions, pursue their passions. And on that note, since you have been pursuing your passion in the field of rugby for a long time and have transformed your passion into your mission, we would also like to invite you as our missionary Passopronia to inspire young students and young leaders, because we put a learning program together for our ex Karmavir Global Youth Fellows, which are students from college and from class 11 and 12, that, hey, don't worry if there are no jobs out there, because we understand that the socio-economic conditions are not just slowing down, but they're broken down completely. So the idea is that because there are no career options out there or jobs out there, don't give up hope. Yes, it is a grim situation, but probably it's also a golden opportunity for you to transform your passion into your mission. And that's why we are bringing together Mojosh Inspirators, Rex Karmavir Global Fellowship, and Karmavir Award recipients from the world over who are inspiring our young students and now even their parents, because a lot of parents have also lost their jobs. So we would also like you to be one of our missionary Passiopronias, and we'll send a mail to you to invite you and then have a separate conversation, because that is a pre-recorded conversation, not a live conversation like this. Yeah. But and that is more focused on learning, while this is more casual, cool, candid. Hannah. So I basically am more of a person to just invite you and welcome you for the InspireX conversation. Our co-founder and host, Miss Itu Chopra, will lead the conversation with you while I become a fly on the wall, and I will see you towards the end to just provoke some insights about what is the role of sports in holistic and overall development of children and the youth and even grown-ups, which we will discuss later towards the end of the session. All the best and catch you later. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thanks, Thank Jerry. you. Thank you, Jerry. Namaste once again, Kuldeep ji. Namaste. And welcome to Inspire Experience Mondays, as we call them. And I'm just going to straight away dive into conversation with you, because that's more important, and what we get from the conversation as a learning and as a revelation for all of you, all the people who are watching in, would be great. So Kuldeep ji, I'd like to start from, how did this love for sports begin, and why did you choose rugby? Because it's one of those games that is not so popular in the country, or let's say it's not talked about as a game in the country. One of the games that dominates the country is the cricket. And what was the reason to choose this game? And take us through, your growing up years and all of that, and sports as one of the major area that you focused on. Yeah, true. As everyone in India, I started with cricket only. Okay. I played many sports when I was in school, but from 10th, 10th class onwards, I pursued cricket only. And till I was 24, I took cricket very seriously. I was considered as a prodigy in my colony, in my college. Right. But unfortunately, fortunately, I couldn't go forward with cricket because you have to sacrifice many things if you want to be a cricketer, and at the last, you never know that where would you reach. So at 24,
almost 23. I completed 23 years, and I left cricket because I couldn't see myself to go any further. Okay. So when I was 29, I was doing just simple fitness training in my gym, and I was among bodybuilders and powerlifters, weightlifters. But I was pursuing only fitness. So because I've seen former cricketers, former sportsmen who have left their sports, and they suddenly they become fat. They put so much weight on. So I thought that I don't want to be like that. So I pursued my fitness training very seriously. And when I was almost 29, somebody introduced me to rugby. And after 2 or 3 training sessions, I thought that this game is for me only. And all the frustration which I got from cricket, I put my energy into rugby. And at 32, I represented first Indian rugby team in Singapore. So that was my age has nothing to do with nothing in life. nothing to do. If you are fit enough, you can pursue your sports till. I'd like you to tell me a little more about what you said. Frustration with cricket. आप उसमें थोड़ी सी मुझे और बताइए उसके बारे में. नहीं, see, क्रिकेट आप देखो, आपको गेम तो पता ही है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर कैप्टन, योर कोच. अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हो तो आपको नंबर 6 में जब कोई अगेंस्ट यू हैव वीकर टीम, so you are not given chance to open the inning. Instead of that, they sent you at the number 5 or number 6 position when like 2 or 3 overs left. You can't perform there, no? You can't go there and perform like that. And when you have stronger team against you, then you are opening against them. And if you have 2-3 failures, then you are gone. So with me, it happened when I had no support from my captain and my coach. So that frustration went into my rugby training. And luckily in rugby, there was no politics like that. And I could do my best in rugby only. But Kuldeep ji, you were lucky, and you were also someone who took the whole thing in your own hands, and you said, this is a choice I'm going to make, and this is how I am going to pave my path. But a lot of people, a lot of youngsters, they dream of becoming the best of the best. They all want to be Dhonis. They all want to be Virat Kohlis. They all want to play well. And I'm sure there are 100,000 people who play better than them. But वो narrow down हो जाता है, वो expectations हो जाती है. It's a team game, a lot of things. So मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में क्रिकेट को रिलीजन जैसे मानते हैं और वो फनेटिसिज्म हो गया एक. Anything which becomes fanaticism takes away from the spirit, and that fanaticism has percolated and permeated into the society, into children in a not very positive way. तो जो positivity of the sport as such वो चली गई है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल, मतलब I totally agree with you. मतलब फ्रस्ट्रेशन एक पार्ट है, बट मतलब मैंने कभी उसको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर. I took as a positive, बिकॉज जिंदगी में आपको फेलियर्स आपके सक्सेस से ज्यादा सिखाते हैं. मैं जिंदगी में यही सीखा है. बिल्कुल. एंड व्हेन आई लेफ्ट क्रिकेट तो मुझे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि आई गिव माय बेस्ट एंड आई कुड गेट सक्सीड. सो आई थॉट दैट आई शुड परस्यू माय फिटनेस. आई वाज डूइंग माय गवर्नमेंट जॉब एट द सेम टाइम, बट आई परस्यूड फिटनेस वेरी सीरियसली. एंड उस वक्त नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम्स, because people showed confidence in me, like foreigners who were playing rugby with me. They said that one day you can represent Indian rugby team, अगर कोई होगी तो Indian team. And उनका कहना सच था, और मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया. तो मैं समझ गया कि भाई जब लोगों को आपके ऊपर विश्वास है, शायद मुझे और उन्होंने इसी कंडीशन पे मुझे
हेल्प मॉनेटरी भी उन्होंने हेल्प किया. देन दे टुक मी ऑन माय फर्स्ट ओवरसीज टूर इन केनिया अपने खर्चे पे. और हाँ, उन्होंने मुझे कहा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस गेम फॉरवर्ड विद यूथ. आई वाज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 31 दैट टाइम. सो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि जब ये गेम मुझे इतना दिया है तो मुझे ये गेम आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए. एंड वो पैशन फिर, क्योंकि फिटनेस फ्रीक तो था ही, तो लोगों को तैयार करना गेम के लिए, क्योंकि रग्बी इज द अल्टीमेट मतलब स्पोर्ट जिसमें बहुत जबरदस्त फिटनेस आपको चाहिए होती है. फिटनेस बहुत चाहिए. हाँ, मतलब यू कांट प्ले विदाउट बीइंग फिट. मतलब हर वे में, स्ट्रेंथ और स्पीड, एजिलिटी, एवरीथिंग. बिल्कुल. तो आपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तो आपने अपने आप को बुलंद रखा. और आपने, you talk about fitness. Tell me how important it is, for everyone, कि आप स्पोर्ट्स में हो या नहीं हो, फिटनेस कितना important है. और fitness is not just about fitness of the body, you also experience the fitness and the agility and the tenacity of your mind which kept you going. So tell me about that and share your views on that. देखो, फिटनेस इज वेरी नेसेसरी. मतलब शुरू से, मैं बचपन से ही, मतलब क्योंकि मैं था स्पोर्ट्स में इंक्लाइन. एंड देन मतलब वेरी अर्ली इन माय लाइफ आई रियलाइज दैट फॉर मी फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप जब फिजिकली फिट रहते हो तो एक कॉन्फिडेंस तो आपको आता ही है. एंड वो कॉन्फिडेंस आपको फिर मेंटल फोकस करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको कई डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी जिंदगी में होते हैं, आपको वो चीजें आसानी से डिस्ट्रैक्ट करती नहीं है. एंड जब आपका माइंड, क्योंकि फिजिकल फिटनेस क्या होता है कि आप बहुत बहुत बहुत, क्योंकि आप हार्ड वर्क से गुजरते हो. एंड वो हार्ड वर्क मतलब कई बारी तो उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है जहां आपकी बॉडी तो गिव अप कर जाती है, लेकिन माइंड आपको सर्वाइव करता है. एंड देन माइंड ओवर बॉडी, वो चीज वहां पे आती है. तो वो चीज बहुत कुछ सिखा गई. और मैं भी बच्चों को, अपने जो जितने भी मेरे रग्बी के स्टूडेंट्स, में सबको यही सिखाता हूँ कि भाई अगर आप फोकस कर दिए एक बारी, देन जो अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल आपको पता ही है, अल्कोहल एंड केमिकल्स, ड्रग्स, हाँ बहुत चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं. देन अब तो ये सोशल मीडिया भी मीडिया बहुत जबरदस्त. तो अब ये अगर आप गेम में फोकस करते हैं तो गेम रग्बी तो ऐसा है कि जिसमें आपको टोटल फिटनेस चाहिए. And then you have to spend too much time on your fitness, so you can play rugby and enjoy rugby, because you can't enjoy if you are not fit. Right. तो उस वजह से मैं जिंदगी में भी फोकस रहा. और मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेरे डिजायर तो थे नहीं, तो डिस्ट्रैक्शंस मुझे बहुत ज्यादा हुई नहीं. मैं लकी था. एंड मैंने सोचा जो मेरे हाथ में है सिर्फ मैं वो करूं, बाकी तो भगवान के हाथ में. तो जो मेरे हाथ में थे वो मैंने, मतलब आई गिव माय 110% टू एवरीथिंग व्हिच आई कुड डू. रेस्ट आई लेफ्ट टू गॉड. वो भी जो भी करेंगे वो सही करेंगे. बट हम रेक्स करमवीर में बोलते हैं कि गॉड तो आप ही हो, क्योंकि आपने जो चॉइसेस बनाई हैं उसी से आपकी डेस्टिनी बनेगी. सो योर चॉइसेस हैव मेड द डेस्टिनी दैट यू आर लिविंग. सो you have to pack your own bag. God is energy. God is that energy which gives you the energy to create the energy. Yes. So you are the creator yourself. Everyone is God and you have to realize it. Yeah. But जिस दिन हमने ये सोच लिया कि भाई हम ही God हैं, मतलब दूसरे वे में, नहीं, in a very nice way to make the choices. True. So कुलदीप जी, क्या आप कहेंगे कि you're living your passion? Your passion is your profession? Yes. And how important is that? As I told you that when I was a small child, I followed cricket very passionately, and that time, like in 73, I didn't know that London is not in India. And India was allowed just 42 runs that time in Lords. तो मैं नहीं जानता था कि भाई लॉर्ड्स इंडिया में है नहीं. मैं सोचता था बॉम्बे के नजदीक लॉर्ड्स है.
क्योंकि शुरू से जनरल नॉलेज में मेरी मेरी ठीक थी, लेकिन तब भी मुझे ये नहीं पता था कि लंदन इंग्लैंड है और बॉम्बे हमारे इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में। लेकिन मुझे उस दिन से पता था कि भाई स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। पढ़ाई में मैं ठीक था, बट क्रिकेट टुक ओवर एंड क्लास 10 तक जाते जाते मैं बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया मुझे स्पोर्ट्स को ही आगे परस्यू करना है। एंड लकीली, क्योंकि कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि आप जो पढ़ाई आपने की होती है, एंड देन आई गॉट सक्सीडेड इन फ्यू एग्जाम्स आई गेव, एंड लकीली मैं फिर 3-4 एग्जाम्स में पास करके और एक जॉब मुझे मिली, गवर्नमेंट जॉब। एंड देन इट वाज इजी फॉर मी टू परस्यू माय पैशन, बिकॉज आपके पास अर्निंग है, घर से कोई दिक्कत नहीं आप लोगों की, जब आप कमा रहे हो तो यू कैन लिव योर पैशन। वो मेरे लिए आसान था, लेकिन हर बच्चे के लिए ये मतलब पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई मतलब आई विल टेल एवरीबॉडी टू परस्यू योर स्टडीज वेरी सीरियसली। समवेयर अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो बस फिर हाथ का कुछ काम सीखो, जिससे कि हाँ कुछ भी आप कमा सको, एंड देन आप फिर परस्यू करो कोई भी चीज, साथ में आगे निकल जाते हो। क्रिकेट के अलावा किसी और गेम में तो क्रिकेट मतलब इज वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, वही आपने जो बताया, हजारों धोनी होंगे, बट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपको होना पड़ेगा धोनी बनने के लिए। अदरवाइज जो बाकी 1000 धोनी होंगे वो बेचारे कभी जिंदगी में फिर वो धोनी नहीं बन सकते, एंड देन उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, एंड देन डिप्रेशन वगैरह ये सब चीजें तभी आती हैं आपके सामने। ये मेरा नजरिया। नहीं कुलदीप जी, और स्पोर्ट्स एक तरह से एक लीडरशिप लेसन भी है, बहुत कुछ सिखाता है जो हम लाइफ में यूज करते हैं। आपका व्हाट वाज योर experience with that? Also because you teach young students to take up rugby, and not just discipline in the ground, discipline in the game, discipline in the body, discipline in the mind. How does that sportsmanship brings discipline and change in their lives? I would like to know your views on that, because you have experienced that with the young people that you have been training and working with. Because I always followed Pakistani Prime Minister Imran Khan. So he was my inspiration. He was my idol that time. Even now, apart from political, Even now? Yeah, even now, yeah. Apart from his that is not life, good news. That's not good news at all. Yes, as a sports person? As a sports person, okay. I followed him religiously. Okay. And Imran was the person that who led from the front in every field. So मतलब मैंने वो बहुत सीरियसली उस चीज को लिया, एंड मतलब मैंने समझ लिया बहुत जल्दी कि आप बातों से जितना मर्जी बोल लो, इफ यू कांट बी दैट पर्सन विच यू वांट टू मेक अदर्स, तो आप नहीं कर सकते काम मुंह से बोल के। आप लोगों से कहोगे ऑनेस्टी पे चलो, आप डिसिप्लिन रहो, आप ये मत खाओ वो मत खाओ और इस तरह से वर्कआउट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मैंने बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में ये रियलाइज कर लिया था। मैंने अपने आप को उस तरह से कंडीशन किया, और जब मैं लोगों के पास पहुंचा तो मतलब होता है मतलब बेचारों को, मतलब बच्चों को मैं बेचारा ही कहूंगा कि उन्होंने मतलब कुछ तो देखा होगा, एंड देन दे फॉलोड मी रिलीजियसली। कई लोग उसमें सक्सेसफुल हुए हैं भाई, लेकिन कई लोग आपको मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता है इतने डिसिप्लिन में रहना। तो लेकिन फिर भी सक्सेस है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर 100 में से 10 लोग भी उस तरह से डिसिप्लिन हो जाते हैं लाइफ में और फोकस हो जाते हैं, तो मैं उसको अपनी सक्सेस मानता हूँ। ये मेरा नजरिया है। So in Rex Karamveer, we say this is one of those is one of our philosophy that not just talks but ideas for action. Action करके दिखाइए, बोलने वाले तो बहुत हैं, और action क्या, आपके actions क्या speak कर रहे हैं? And also there's something that there's an acronym that we talk of DOGS, which means dearly obsessive goals.
क्या Yes, आप में obsession of discipline है true. to follow things up and take it to the hilt and bring results and changes, because I change to change. मैं नहीं change करूंगा तो फिर इंडिया या वर्ल्ड कैसे चेंज होगा? बूंद बूंद से सागर भरता. बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच. So, Kuldeep ji, you took your sports, your passion, your rugby to another level. That is why such people are celebrated, and you are a Maharatna. That you didn't only leave what you were learning and doing to yourself. You took it back to the society. You wanted to give it back, and you started giving back through rugby to the community. So, share with us about giving back to the community through your rugby work and your sports. Yeah, because for me, discipline is everything. So, मैं प्लेयर्स को मतलब अपने ऑप्शंस देता हूँ. मैं उनको बार बार ये चीज बताता हूँ कि भाई जैसे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि लोग कहते हैं कि हम शराब पी के शादियों में नाचना पसंद करते हैं क्योंकि हम बिना शराब के शादी में नाच नहीं सकते. तो मुझे आज तक ये फिलॉसफी समझ में नहीं आई है. अगर मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और मेरे किसी जानकार की शादी है तो मेरे पाँव अपने आप ही उठते हैं डांस करने के लिए. मुझे कोई शराब पीने की जरूरत नहीं है. तो अगर मुझे एंजॉयमेंट चाहिए मेरे अंदर, अगर मैं अंदर से आई एम हैप्पी, देन इट शोज. मतलब आपको कुछ बाहर से कुछ लेने का जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो मैं अपने प्लेयर्स को ये ऑप्शन देता हूँ, बस यू बी डिसिप्लिन, ओके, फॉलो पैशनेटली. अगर आप इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर फिट इनफ, यू विल एंजॉय योर लाइफ. अगर आप बाहर से कोई केमिकल लेने की आपको जरूरत नहीं है. आपके अंदर इतना डिजायर और इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उस गोल को अचीव कर सको. और अगर आप 100% पे भी नहीं पहुंचते, 90% पे भी कोई कम नहीं है. मतलब अगर आप स्कूल में एग्जाम्स में भी देखो, 90% कोई कम नहीं है परसेंटेज. तो अगर आप 100 अपना टारगेट बनाते हो, 90 भी रहते हो, कोई बुराई नहीं है. हाँ, अगर आप डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन से आप 20 पे गिरते हो, 30 में गिरते हो, तब आपको ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है. एंड मैं समझता हूँ कि मैं वो मैसेज कन्वे करने में मतलब काफी सक्सेसफुल रहा हूँ. तो जब मैं देखता हूँ अपने लड़कों को बढ़ते हुए, जो छोटे छोटे 14-14, 15-15 साल के हुए थे, आज हट्टे कट्टे नौजवान बन चुके हैं और लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं. एंड देन मतलब वो कोई बहुत अच्छे, मतलब मैं कहूँगा बैकग्राउंड से भी नहीं थे. They were from poor families, humble background, yes. And now where they are, I'm very happy for them. And मैं भी उनको भी मैं ये क्योंकि अगर मैं ही जिंदगी भर लीडर बना रहा, जिंदगी भर अगर मैं ही सब कुछ करता रहा, तो वो बेचारे वो कैसे लीडर्स बनेंगे. तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक में मैं एक लीडर देखूं और उसको पैशनेट रह के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं कि कल वो 10 लोग मेरी जगह ले सके. तो फिर 10 लोग 100 लोग तैयार कर सके और इस तरह से शायद आगे लीडरशिप बढ़ सके. तो ये मेरा गोल रहता है पर्सनली, तो नॉट ग्रोइंग माई सेल्फ बट ग्रोइंग अदर्स ऑल्सो. बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक एट रेक्स करमवीर, दैट लीडर्स क्रिएट लीडर्स. कि ये एक रिपल इफेक्ट रहना चाहिए आगे से आगे. हर लीडर एक और लीडर बनाएगा तो द वर्ल्ड नीड्स मोर लीडर्स टू लीड एंड टू क्रिएट मोर लीडर्स. एंड आपने पहले भी फेलियर की बात की है, तो फेलियर तो सेलिब्रेट करने वाली चीज है. बिल्कुल, एक्सेप्ट करने वाली चीज है और लर्न करने वाली चीज है वहां से. जो कोशिश करेगा वो फेल भी होगा. बिल्कुल. ये नहीं कि आप, वरना फिर भगवान में आप में कोई फर्क नहीं. अगर आप 100 चीजें ट्राई कर रहे हो एंड इफ यू गेट सक्सेस इन 100 अटेम्प्ट्स, देन यू आर गॉड, नॉट अ मैन. भगवान भी बहुत फेल हुए हैं और हमने भगवान की हेल्प करी है फेल करने में. भगवान वो है, वो भी उन्होंने इसलिए एग्जांपल दिया है लोगों को कि भाई हर फेलियर के बाद सक्सेस भी आ सकती है. और फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन लर्न करने के लिए. यस, ट्रू. So Kuldeep ji, you started the Delhi Hurricane Rugby Football Club. हमें इसके बारे में बताइए. और कैसे बच्चे हैं यहाँ पे, कौन से बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, और उन्होंने how wonderful work they are doing, और tell us about this. When I started rugby in 1995,
we had a core group like only 5-6 Indians, and the rest of the players were foreigners. Okay. तो उस वक्त तो कोई मुश्किल नहीं थी, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब अगर कहीं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग करनी है, एक कॉस्ट, कितना कॉस्ट पड़ता था तब, ऑलमोस्ट 500 रुपीज पर सेशन अंडर लाइट्स। एंड उन लोगों के फॉरेनर्स के लिए वो 500 रुपीज समझ लो आजकल की 100 रुपए भी कुछ नहीं थे। तो वो टाइम बहुत अच्छा था, मतलब टिल 2000 मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा। बट 97 जब वो मुझे कीनिया ले गए, then I felt that it's my responsibility to bring more Indian players in rugby. And then I went to schools, and then I went to bars में bouncers वगैरह, मतलब भी हट्टे कट्टे लोग चाहिए भैया, तो bouncers को देखो। तो इस तरह से फिर मैं प्लेयर्स लेके आया अपने, जो मेरे को प्लेयर्स, जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके साथ मिलकर। बट जैसे जैसे इंडियन प्लेयर्स आते गए, मोस्टली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, Okay. और like they were from humble background, तो पैसे का मुसीबत आने लग गया। And then in 2000 like we didn't have any foreigner left in Delhi, and that time we were called Delhi Rugby Football Club, King Cobras. So somehow we went further, and in 2002 we went to Calcutta for All India tournament, and we had two teams that time, and we had all the Indian boys with us. हमने सोचा कि फिर हम दो टीम्स क्रिएट करें। Then we created Delhi Hurricanes Rugby Football Club, and another club was Delhi Lions. और इस तरह से जर्नी निकला। We started with 16-18 players, and today we have almost 600 players in our club. तो वो जर्नी वहां से यहाँ, और किस तरह से पैसा जनरेट हुआ, लोगों ने किस तरह से हेल्प किया, जो पुराने फॉरेनर्स प्लेयर्स थे हमारे साथ, एंड मेरे स्टूडेंट्स अलग, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में जो मेरे स्टूडेंट्स थे। क्या मुश्किलें क्या आई उसमें? बहुत मुश्किलें थी, पैसा तो करना, और हर बारी आपको लिखना, मतलब मेरे बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी किसी से इस तरह से मांगा नहीं पैसा। बट टीम के लिए मुझे वो काम करना पड़ा, लेकिन क्योंकि लोगों को शायद बहुत विश्वास था, पीपल गिव मनी टू दिस क्लब। जिस तरह से फिर हमारा क्लब चलता रहा, और आज तक पता नहीं, भगवान ही जानता है ये क्लब कैसे चल रहा है। बट एट द राइट टाइम, मतलब उसमें मिस्टर पार्किंसन बहुत बड़ी हेल्प रहे जिंदगी में, मतलब ही हेल्प्ड अस फाइनेंशियली आल्सो। तो देखो कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी है, कैसे उनको पता लग जाता कि भाई लोगों को पैसों की जरूरत है, और वो उसी वक्त पूछते हैं हमसे कि भाई आपको कुछ पैसों की जरूरत है? हाँ जी है, और वो फिर पैसे भेजते हैं हमें। तो ऐसे कई बहुत प्लेयर्स हैं मेरे पुराने, एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम एट दिस प्लेटफॉर्म कि उन्होंने रग्बी को सर्वाइव रखा। अदरवाइज वी डोंट गेट सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम आवर यूनियन, हम कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये किसी तरह से चल रहे हैं, एंड एज आई, आपकी डिसिप्लिन, शिद्दत भी तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, मतलब लोगों का विश्वास है, एंड देन वी हैव अ ग्रेट टीम इन दिल्ली हरिकेन्स। वी हैव सम सीनियर प्लेयर्स and some outsiders who never played rugby, but somehow they are passionate about rugby, they watch rugby, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फील्ड में हमको। एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट स्पॉन्सरशिप। माशाल्लाह एक दिन देखो मिलेगा। I'm sure. So कुलदीप जी, ये बताइए कि रग्बी is not one of those games that is very popular in the country. तो आपको स्कूल्स वगैरह में जब आप जाते थे, या लोगों को इसके बारे में कन्विंस करने में, did you find it tough or was it easy? What was it like? It's very tough. Especially in public schools. We went to modern school also, and they had their team of rugby, but very few boys and girls they went into rugby. And now we have a training program in Frank Anthony Public School in Mulchan,
they are very passionate about rugby because they have their principal and their PT, like physical education teacher, vice principal, they are very supportive. And then you have to convince their parents also, because this is very physical sports. But you can start with touch rugby. It's not physical. So once you are into the game, then you can decide that whether you want to play contact rugby or not. So it's their choice only. They can ask their parents because भाई हम enjoy कर रहे हैं इसको, so I want to play contact sport, and then with parents' consent, they could come at our field and they can enjoy contact rugby there. तो 2 दिन हमने पब्लिक स्कूल चूज किए एंड उनकी तरफ से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन आज मॉडर्न स्कूल फिलहाल बंद है अभी फिलहाल देखो जब नया सेशन जब स्टार्ट होता आफ्टर कोविड टाइम, देन वो इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा ही नहीं, वो देखना होगा. बट गवर्नमेंट स्कूल इट्स इजी, वी सेंड ओवर कोचेस देयर. And how many government schools are there with you in this program? We took 8 schools under our wings, and we got almost 80 to 90% players from government schools only in our club. तो जब ग्रेजुएट होते हैं तो हम उनको फिर क्लब में मौका देते हैं, and then they play through state also. So, Kuldeep ji, I'd like to ask you that why should people choose rugby over any other game, or why is there need for more games, not just rugby? I think more games to come into India and more children to play those games rather than just be devoted towards one national wastage time on cricket. Rugby has its values, so like integrity, passion, solidarity, discipline and respect. और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है सिर्फ. You watch any game on TV. जो बड़ी कंट्रीज खेल रही हैं, अब तो इंडियन टीम के भी मैचेस टेलीकास्ट होते हैं ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में. आप देख सकते हो कि players seriously follow those values. And जब आप ये गेम खेलते हो तो इन वैल्यूज के साथ आप आम जिंदगी में भी अपने काम करते हो, तो इट हेल्प्स यू टू रीच एट समवेयर जहां से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेते हो एंड आपके सामने एक विजन हो जाते हैं कि भाई मुझे इन वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है, एंड देन इट गेट्स इजियर फॉर यू to go forward. Absolutely. आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट टच किया जिसके बारे में जेरी बाद में आपसे बात करेंगे, बिकॉज एक तो आपने जो हैप्पीनेस के बारे में बात की, द इंटरनल हैप्पीनेस, वी कॉल इट द डोसेज ऑफ हैप्पीनेस सर्किटरी. जेरी उसके बारे में आपसे बाद में आके बात करेंगे. और ये जो आपने इंटेग्रिटी और कंपैशन एंड डिसिप्लिन इन सब की बात की, दीज आर ऑल आर some of the values and principles and powers that are within us. How are they unleashed through our program that Jerry was talking about, the Mojish Inspirator program? He's going to come back and talk to us on that. But I would like to ask you more about that. You also started an academy and you engage with the community. You go to various NGOs and villages and things like that. And your club is the largest playing club. So tell me the reason to kind of go from the cities, also somewhere rugby थोड़ी सी elite game है, but आप उस elite को to the masses, to the grassroots, you are wanting to tell me your thoughts on that and what is the idea behind it? ये आइडिया मतलब जस्ट यही था कि जो रग्बी वैल्यूज थी, मुझे लगा कि ये हेल्प कर सकती है मतलब न्यू जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए. And then as a team collectively we decided to take this game to NGOs also, जहाँ underprivileged जो बच्चे होते हैं बेचारे, जो कभी ग्राउंड तो उन्होंने देखे ही नहीं होंगे मतलब इस तरह के. And we have a very nice field in Vasant Kunj जो कि dedicated है रग्बी के लिए. And then हम उन NGOs में प्लेयर्स तैयार करते हैं and then we take them
into the field और उनको चांस देते हैं वहाँ एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई आप स्पोर्ट्स के थ्रू अपने इमोशंस, अपना टैलेंट, ठीक है ना, आप यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए, मतलब विदाउट एनी स्क्रूटनी, मतलब हम किसी को अंडर प्रेशर नहीं करते वहाँ पे कि भाई आप सिर्फ अपने हिसाब से परफॉर्म करो, डू योर बेस्ट और एंजॉय करो, दैट्स ऑल। तो ये हमारा बेसिकली आइडिया था। 3-4 एनजीओ आगे आए हैं और करीब हम 500-600 बच्चे वहां भी ट्रेन कर रहे हैं फिलहाल। तो यही नजरिया था, ये पूरी जो हमारी कमेटी थी उसका डिसीजन था, एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। और विलेजेस में भी सेम था शुरू में, क्योंकि प्लेयर्स का आपका जरूरत था, और जब क्योंकि हर जगह एलिट गेम था पहले, बट जब से प्रोफेशनल स्पोर्ट बना है तो इवन इन अदर कंट्रीज, पहले तो शुरू में तो आप जिस रग्बी प्लेयर को देख लो बिफोर 1995, तो कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई बड़ी कंपनी में बॉस है, इस तरह के लॉयर्स हैं, यही लोग रग्बी खेलते थे। बट आज एट द एज ऑफ 17 वहाँ स्क्रूटनी हो जाती है कि भाई कौन प्रोफेशनल रग्बी में जाएगा एंड कौन एज ए हॉबी इसको आगे लेके जा सकता है। तो उनको कहा जाता है कि आप पढ़ाई में फोकस कीजिए, एंड देन एक एलिट ग्रुप को अलग कर दिया जाता है जिनको प्रोफेशनल प्लेयर्स बनने के लिए उनके अंदर टैलेंट होता है। तो बहुत बहुत अर्ली एज में चूज करते हो। अब कोई ऐसी बात नहीं रही कि जो प्लेयर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज दे आर फ्रॉम एलिट बैकग्राउंड, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया में तो बहुत पहले से ही ऐसा हो गया, मतलब वी स्टार्टेड इन 1995 और 98 में तिरस्म में टूट चुका था कि एलिट, क्योंकि पहले बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पहले जो चेन्नई अब हो गया है, तो पहले असम एलिट ग्रुप खेलते थे पहले, लेकिन जब दिल्ली पहले आया, फिर भुवनेश्वर, हमको कई मतलब ऐसे ये पौंडीचेरी वगैरह ज्वाइन किया, तो फिर जो नॉट सो एलिट ग्रुप उन्होंने भी खेलना स्टार्ट किया, और आज समझ लो ऑलमोस्ट 50 प्लेयर्स तो हम दे चुके हैं इस क्लब से इंडिया को, एंड उसमें से कोई भी एलिट ग्रुप से नहीं है। Which is so beautiful, which is so heartwarming, because the best of the players come from the villages or from not known places. And बहुत सारे players ने इंडिया में बहुत सारी गेम्स में ये प्रूव कर दिया कि जो सिटीज में रह रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, वो नहीं बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे, वो नहीं ओलंपिक गेम्स में जीत रहे, वो नहीं वर्ल्ड स्टेज पे जाके बेस्ट परफॉर्मेंसेस आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेसेस, प्लेयर्स लाइक हिमा दास एंड सो मेनी अदर्स हु हैव शोन कि टैलेंट कहीं पे भी हो सकता है। बट अर्लियर ना दे डिडंट हैव एक्सपोजर। ट्रू है ना, तो मतलब कहीं मीडिया हेल्प भी किया है, एंड देन नाउ यू हैव प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। तो अभी हम जस्ट जो हम किए, हम भी तो लोगों को क्या दिए, प्लेटफॉर्म दिए, एक क्लब दिया जहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपना टैलेंट, एंड इफ यू आर टैलेंटेड इनफ तो आपको ये विश्वास होना चाहिए क्लब में कि भाई जो भी टैलेंटेड आदमी होगा उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रू। जो हमारे साथ नहीं हुआ वो हम लोगों के लिए करेंगे। तो एंड इवन रग्बी इंडिया इसमें बहुत हेल्प किया है, एंड they are very genuine in selecting the teams, and they were very helpful. They took genuine talent under their wings and आगे वो represent करवाए इंडिया से। We are very thankful to rugby India also. Yeah. पर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि that not just talent but एक और competence जो विलेजेस से बच्चे आते हैं या जो छोटी जगहों से आप बच्चे ढूंढते हो, उनमें कॉम्पिटेंस भी होता है, उनमें कुछ हंगर होती है, उनमें कुछ कर दिखाने की वो चीज होती है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टैलेंट तो एक्वायर किया जा सकता है, एंड वी एट रेक्स टॉक अबाउट दैट इट्स योर कॉम्पिटेंस दैट हेल्प्स, it's your competence that really helps you, and you can act character that helps you, and you can acquire your competence. आप कुछ भी सीख सकते हो अगर आप में वो शक्ति है, वो शिद्दत है, वो पैशन है, वो इंटेग्रिटी है, वो
जुनून है कुछ करने का। यस यस। तो क्या आपको ये डिफरेंस लगा जो बच्चे आप विलेजेस में से लाए? हमें उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, इस मतलब 100% ट्रू। हाँ, उनको मौका नहीं मिलता। दे आर मोर हंग्री टू रीच देयर, बिकॉज उनके पास बहुत चीजें नहीं है देखने के लिए। तो थ्रू दैट मतलब दे वांट टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी, जो और किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? लाइक रोड में भी आप देखते हो, इफ यू आर इन मारुति तो लोग मर्सिडीज वाले को देखते हैं, एंड मर्सिडीज वाला भी बेचारा अभिमान से भर जाता है जब उसको 10 लोग ऐसे मुड़ के देखते हैं। तो एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, वो मर्सिडीज में तो घूम नहीं सकता, तो कहाँ टैलेंट दिखाना चाहता है एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में जहां उसको 1000 लाख लोग देखें, तो वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। एंड देन वो उसकी जिद उसको वहां लेके जाती है, एंड डिटर्मिनेशन साथ में। तो ये मतलब ये तो पक्का है कि विलेजेस में और रिमोट एरियाज में इसलिए लोगों का मतलब बहुत ज्यादा प्लेयर्स हमको वहां से मिल रहे हैं हर गेम में। और एलीट अब आप देख लो बेदखल होता जा रहा है, कम से कम स्पोर्ट्स फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अहम और मायने वाला पॉइंट आपने दो निकाले कि विलेजेस में ही वो शिद्दत है, वो कैरेक्टर है उनके पास टू मूव फॉरवर्ड। वो ये नहीं सोचते कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है इसलिए मुझे खेलना है, मुझे धोनी बनना है मुझे इसलिए खेलना है। उनको बस खेलना और अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास चाहे जूता नहीं है पर मैं भाग सकता हूँ। बिल्कुल 100%। और आई थिंक हमारे को ये भी डायलॉग और ये जो एक नैरेटिव है कि गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और बड़ा नाम होना चाहिए, इस बात को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज कोविड ने भी हमें बता दिया कि उस चीज की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है? हमारे को इस दुनिया में बीइंग ह्यूमेन, एक्चुअली ह्यूमेननेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, काइंडनेस की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है। सो वो सब बहुत जरूरत है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड संतुष्टि कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। आप देखो, आप आगे बढ़ सकते हो किसी बात में। वो लोग भी गाड़ियां शायद ले रहे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई एम नहीं किया गाड़ी लेने का, लेकिन वो जैसे मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहा। जब मेरे पास स्कूटर था मैं तब भी खुश था, आज मेरे पास एनफील्ड बाइक है मैं तो भी बहुत खुश हूँ। और मेरे पास कार नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। कल हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं भी होगी मुझे कोई लाले नहीं है। मैं कभी भी पहाड़ में उठ के चले जाता हूँ बाइक में, तो मैं जा सकता हूँ कहीं पर भी। नहीं तो मैं पाँव है मेरे पास, गवर्नमेंट ने गाड़ियां चला रखी है, मैं उनके थ्रू जा सकता हूँ, अपने पैशन को जी सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, खेलने के लिए मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, वहां पे मुझे 2 पाँव चाहिए थे, 2 हाथ चाहिए थे और एक फिट बॉडी चाहिए थी। तो मर्सिडीज में बैठ के मैं वो फील्ड में एंजॉय नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं बहुत जल्दी ये समझ गया था, एंड मैं समझता हूँ कि मैं उस हिसाब से काफी संतुष्ट और काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी से। बिल्कुल। ट्रू हैप्पीनेस तो किसी को खुश करने में या अपने आप को खुश रख के और वही खुशी बांटने में ही है। सो दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस। एंड मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि किसी और के पास मर्सिडीज है और भगवान उसको आगे जाके लुम्बरगिनी जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो दिलवाए। मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। मुझे कोई जेलसी नहीं उन लोगों से। पर आपकी गेम आपको अब्रॉड भी लेके गई, आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दिलाया, और यू आर अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रग्बी कमेटी, इंडियन रग्बी कमेटी, जो टूर्नामेंट कमेटी होती है उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं आपके मतलब थ्रू स्पोर्ट्स। एंड बहुत लोग हैं, मतलब कभी बचपन में ये सोचा नहीं था, मतलब क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मैं भी था। एंड कैसे आप थ्रू फ्रेंडशिप कैसे लोग आपको मिलते हैं, एंड देन दे टुक यू देयर जहां आप कभी सोचे नहीं कि आप नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है उसमें, लेकिन लोग भी देखो कितने हेल्पफुल होते हैं कि वो मुझे वहां ले गए जहां मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो
आप नहीं सोचते कि आप उन लोगों, उतने बड़े बड़े प्लेयर्स, मैं मतलब जैसे एलेक्स मर्फी का मैं यहाँ पे स्पेशली नाम लेना चाहूंगा. He took me there where I never thought that मतलब I can be with Wales rugby players, international players, and England national players, and I can exchange my views with them. Leicester Tigers में प्रोफेशनल रग्बी जो अकेडमी, प्रोफेशनल रग्बी टीम, उनके साथ आप एक्सचेंज कर रहे हैं व्यूज, वो मैं कभी सोचा नहीं था. मतलब एंड उससे बड़ी मतलब पैसे वो खुशी नहीं खरीद सकती, वो एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकती जो एक्सपीरियंस मुझे इस तरह से मिला थ्रू रग्बी. तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज, मतलब मिस्टर स्कॉट क्लार्क है, मिस्टर पर्किंसन, डेविड एटन, कितने लोग हैं, मिस्टर बोनी कपूर, जिन्होंने मुझे हेल्प किया वहां पहुंचने में. एंड अब मैं वही चाहता हूँ कि मैं लोगों को, अगर मेरे पास जो भी मेरा कैपेसिटी है, मैं लोगों को उस तरह से हेल्प करूं, मैं उनको उस जगह से उठाऊं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊं. बस अब मेरा सबसे बड़ा एम यही है. कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है लेकिन मैं चाहता हूँ कि और सक्सेसफुल हूँ इस मामले में. यहीं पे मैं थोड़ा मतलब सोच रहा, थोड़े मेरे डिजायर बढ़ जाते. That is so beautiful because the joy of giving movement that Jerry had begun, that talks about the joy of giving is the joy of living. The true joy in life comes from sharing and giving back to the universe and creating a legacy where आप एक legacy create कर रहे हो to make the world a little better than what you came into. अगर हम 7.5 बिलियन लोग या जितने भी हैं, अगर हम हर कोई सोचे कि हम अब थोड़ा सा वापस कर दें और दुनिया को अपनी कैपेसिटी में जो भी हम करते हैं उसमें दुनिया को बेटर बना दे, तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, थॉट्स भी बेटर हो जाएंगे. सबको यही बताता हूँ, देखो आप अगर 10 आए हो, इवॉल्व हो जाओ. अगर आप 10 थे और 9 पे मर गए तो आपसे मतलब मैं समझता हूँ बुज़दिल इंसान कोई नहीं है. आप थोड़ा सा ग्रो करो, बेशक 10.1 करो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओ तो 10.1 पे जाओ. अगर आप 20 पे जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट है ना, इवॉल्व जरूर हो जाओ. तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी सी हमसे अच्छी रहे, ये बना के जाओ बस. कि अब मैं 10 था, 10.1 पे मैं गया, एटलीस्ट 10.2 पे नेक्स्ट जनरेशन जाए, 10.3, ऐसे करके हम 20 भी पहुंचे कभी. ये मेरा और यही एंडेवर है हमारा. जो मिल्स प्रोग्राम जेरी आपसे बात कर रहे थे अभी, हम थोड़ी बात उस पर और करेंगे जब हम जेरी को इनवाइट करते हैं. एंड आई थिंक आई शुड इनवाइट हिम बैक इनटू द कन्वर्सेशन ऑन दिस नोट, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन से और थॉट्स और इनसाइट्स जेरी शेयर करेंगे आपके साथ. सो आई एम इनवाइटिंग जेरी बैक इनटू द कन्वर्सेशन टू टेक दिस वंडरफुल, very humbling, warm conversation that I've had with you, Kuldeep ji. So I'm inviting Jerry back into the conversation. Thank you so much. Coach Kuldeep. Hanji. I should call you Coach Kuldeep now. है ना? Call me Kuldeep only. Yes, because whatever you are speaking is exactly the same language that we speak in the Rex Karmavir Global Fellowship Mission, forums. And it is also part of our Mojosh Inspirator learning. And I will start with that. है ना, आपने बात की, right? कि I've studied some of the best coaches in the world, है ना? And like one of the all-time great coaches, मतलब I won't talk about coaches who only focus on sport, कि competence बढ़ाओ, है ना? Because that doesn't truly win games, right? What wins games is when people have that discipline, that devotion, that diligence, and the love of that sport. You're not just playing the sport for fame, money, glory, gut, and all those kind of materialistic gains. You're playing the game because you believe in the game. You are passionate about the game. There's huge research to show you that people who only do things for money, they kind of burn out somewhere along the way. And there was a movie made many years ago called Jerry Maguire. It was based on the life of a real coach. I forget his name now. His name was not Jerry Maguire, but Jerry Maguire was loosely based on the life of this coach, who basically not a coach. He was more of a manager
who used to basically tell people that, if you're just pursuing money, then your focus on the game is getting weakened. Your focus is getting diverted and distracted, and that's where your game starts suffering. And it's a vicious cycle, because if your game suffers, your market value goes down, right? Now, the best coaches, whether it is Anson Dorrance, who teaches football, soccer, or it is Coach John Wooden. Coach John Wooden is the legendary basketball player and coach who created a learning program called the Success Pyramid. And he, year after year, he churned out the best NBA superstars. है ना? जितने भी आपके NBA के superstars है in the 80s, 90s, they are all prodigies, they are all products of Coach John Wooden's training. And Coach John Wooden died an old man, and they had selected him for the Lifetime Achievement Award. He had no such fetish to go for any awards. मतलब वो दूर ही रहता था इन सब awards वगैरह से. Glory देख ली थी बहुत as a player and then as a coach, है ना? तो वो awards कोई मायने नहीं रखते आपके लिए. जब आपको पता है कि जो आपने किया है, that has created such a huge legacy that is you have created eternity. और उनका एक, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है जहां पे यू कैन where all the top basketball legends are talking about Coach John Wooden, और वो यही बात कर रहे हैं कि कोच जॉन वुडन ने कभी हमें बास्केटबॉल सिखाया ही नहीं. वो हमें हमेशा कैरेक्टर सिखाते थे. गेम से पहले बोलते थे कि आप जाओ, गेम खेल के आओ, हारने पे, हार जीत पे ध्यान मत दो, क्योंकि हारना तुम्हारे बस में है, जीतना तुम्हारे बस में नहीं है. What is in your capacity is to put in your best effort. And if you put in your best effort, you won't fail. Maybe you won't fail. Sorry, if you put in your best effort, you may pass, you may succeed, you may win. But if you don't put in your best effort, you will surely lose. Hannah? That is the one big learning from Coach John Wooden. So all the players in the documentary are talking, what is this guy talking? I mean, initially when he started coaching us, हम हैरान थे कि ये बास्केटबॉल नहीं सिखा रहा है, फिलोसॉफी सिखा रहा है हमें. पर बाद में पता चला कि इस फलसफे में पूरी प्रैक्टिकलिटी है. क्योंकि वो बोले हमें कि आप गेम में जाने से पहले, व्हाट इज द न्यूरो साइंस ऑफ दिस? व्हेन यू पुट स्ट्रेस ऑन पीपल टू विन, द ब्रेन प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव केमिकल, right, which is called duress. It creates bad stress. It is called duress. When you tell people, because your brain knows that to win a game is not in your control, है ना? To win a game, कि I will play my best, but maybe the other guy plays better, यार. So it is not in my control. So now the brain has registered कि हमें बोला जा रहा है कुछ ऐसा करने को जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. तो ड्यूरेस हो गया, बैड स्ट्रेस हो गया. ये अनकॉन्शियसली हो रहा है प्लेयरों को, और ये न्यूरोसाइंस में प्रूव हो गया. अब when you tell the players, go and put in your best effort at the end of the match, whether we win or lose, don't worry, I will ask you one question. Did you put in your best effort? जो आपने बोले ना, not 10, not 10.1, not 10.2. I want to ask you, did you put in 10 into 25x? Which means that you played like today is your last game. If that question is answered negatively, then there is a problem. Right? And that don't compete with any of your other players, because champions don't compete with others, they compete with themselves. अब जो आप कहे ना वो कि वो hunger जो है वो missing है, तो I'm going to show you one, this is a picture. Can you see it? It's the launch of the fastest Indian, है ना? Rex Karmavir Global Fellowship Mission was a partner in this. And I remember Milkha Singh spoke before me, because he is the fastest Indian, and we were trying to look for fastest Indian. And then I was to speak after him. And then the Gale HR head and all their CEO and everybody was there. और मिल्खा जी जो बोले हमें तो कोई जानता ही नहीं था, तो हमें तो मिल्खा भाग के बाद लोग जानने लगे हैं. तो मुझे मतलब अजब लगा कि भाग मिल्खा जी से बड़ा है. तो दूसरी बात उन्होंने ये कही गेल के चेयरमैन ने कि हमारा जो बड़ा एथलीट आएगा वो कोई अच्छा ट्रेनिंग वाला, जिसको अच्छी ट्रेनिंग अच्छी तालीम मिल रही, वो वहां से आएगा.
तो हमने जब बात की, मैंने पहले मिल्खा जी को कहा कि मिल्खा जी, आई हैड कम टू मीट यू वे बैक इन 2006 when there was no Bhag Milkha Bhag movie, asking you to be a mascot for the Bangalore Marathon. So the movie didn't make Milkha Singh. Milkha Singh made the movie. True. And because you came in through the struggle and you came in through the mill, you came in from nowhere and you became an athlete without any equipment, without any training, क्योंकि आप में वो जज्बा था, जुनून था, जोश था कि कुछ कर दिखाए, है ना? और मैंने गेल के जो सीईओ वगैरह थे उनको बताया हमारा जो अगला चैंपियन आएगा, ये 2014 की बात है। जी। हमने कहा हमारा जो अगला चैंपियन आएगा वो हमारे कोई बड़े स्कूल या कॉलेज में से नहीं आएगा, वो ऐसी जगह से आएगा, ऐसे एक विलेज से आएगा जहां जहां से आप उस विलेज के नाम भी नहीं सुने होंगे। और कुलदीप जी, ये हुआ 2017 या 18 में हिमा दास हुई, और मैंने 2017 में मेरा पोस्ट अमेंड किया कि द मोस्ट सर्च आइटम ऑन गूगल विच इंक्लूड्स अ मेजॉरिटी ऑफ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल आर सर्चिंग फॉर हिमा दास कास्ट। कैसा इनका एजुकेशन? ये एजुकेटेड है, ये खुद को कहते हैं एजुकेटेड। एजुकेटेड गूगल पे अगर सर्च कर रहे हो तो मतलब कुछ तो, मतलब कोई ना कोई स्कूल में गए हो, इंटरनेट है, गूगल में सर्च मार रहे हो। द सर्च इन दैट पर्टिकुलर ईरा व्हेन हिमा दास वन, दे वर सर्चिंग फॉर हर कास्ट। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस लड़की को, जिनको आपने, चाहे वो सरकार हो जिन्होंने उनको मतलब कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदा, जूते भी नहीं खरीदे, चाहे वो स्पोर्ट्स कंपनीज हो जिन्होंने उनका हुनर नहीं देखा, जूते भी नहीं दिए, शी रैन बेयरफुट, उसके बाद सब एंडोर्समेंट्स आए। एंड आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, द सोल, जो हमारी आत्मा है, वो हमारे मेन स्ट्रीम अर्बन इंडिया में नहीं है। हमारी आत्मा जो है, द सोल ऑफ इंडिया इज इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, और उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको दिख रहा है, फार्मर एजिटेशन हो या राइट्स, दलित राइट्स हो, उनको तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। आप कास्ट ढूंढ रहे हो उनका, when you should be celebrating that girl for a spirit, for a junoon, for a championship, है ना? So that is what those are a few insights I wanted to share with you, and I liked what you said that अगर खुशी हमारे अंदर है, you don't need the alcohol, because the alcohol basically triggers the dopamine circuitry, है ना? The alcohol does not do anything else, but it triggers the dopamine circuitry, and the dopamine circuitry is within you, right? It is not in the alcohol. And that is exactly what we explain. I'm going to show you, right? This is the जो हमारे मोजोश इंस्पिरेटर के जो learnings हैं, आपको दिखेगा, this is the mojosh dosage of happiness. The alcohol basically triggers the dopamine. That's why people feel a little high, but it's not the alcohol which is doing it. It's that you have got triggered because the dopamine has got triggered. And if you don't have the balance of all the right chemicals, then your happiness will never be there. What you rightly said, that संतुष्टि अगर नहीं है, contentment अगर नहीं है, तो your brain cannot be calm. क्योंकि आप हमेशा ये सोच रहे हो कि मैं अपना अगला मिलियन कौन से एंडोर्समेंट में बनाऊंगा, और तभी आपकी गेम मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके गेम को नुकसान पहुंचाता है। आप, यू विल सी दैट द बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल don't perform because their mind has completely got diverted by their business managers into business, into endorsements, और बाद में मतलब आप गलत करो, क्योंकि अभी आपको अचीव करना है तो आप गलत करो, आप एंडोर्समेंट्स करो आम्रपाली के। धोनी कौन बोलता है हीरो है? क्रुक है, चोर है। आम्रपाली में एंडोर्समेंट नहीं था, आम्रपाली में डायरेक्टर है वो। सब बोलते हैं एमएस धोनी डायरेक्टर हो भाई साहब, लोगों के पैसे मारे हैं आपने। अनफॉर्चुनेटली उसमें एक घर मेरा भी है। हाँ, तो चोर है। आपको अब दर्द महसूस हो रहा होगा ना। सब बोलते हैं हीरो है, कहाँ हीरो? तो जब आप चोरी करके पकड़े जाते हो ना, तब आपको मूवी बनानी पड़ती है धोनी करके, टू शो दैट मैं ऐसे कैरेक्टर हूं, क्योंकि वो कैरेक्टर तो आप में है ही नहीं। तो प्रॉब्लम यही है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको सच्ची में कैरेक्टर देखना है स्पोर्ट्स स्टार में, तो वो है पुलेला गोपीचंद। वो भी हमारे कर्मवीर पुरस्कार अवार्ड रिसिपिएंट है। इंटीग्रिटी देखो उनकी कि मैं, आई विल डू व्हाट इज राइट। इंटेंट, आई विल नॉट मिसलीड द यूथ ऑफ दिस कंट्री टू थिंक दैट कोका कोला और पेप्सी कोला इज अ हेल्दी ड्रिंक, राइट? सो आई वोंट एंडोर्स पेप्सी और कोक, नहीं किया। Capabilities, my playing days are over, so what can I do?
So he builds an academy on his own cost and gives you results. 7 champions on his own cost. Can any cricketer say that? No. सचिन तेंदुलकर कह सकता है कि देश को 1 चैंपियन दिया है? कभी नहीं. धोनी कह सकता है? तो character missing here. This is what we focus on then, and that is what you said, that if you have that focus, that you're completely passionate about your game and you train your brain that I want to do something where I excel in this, and you can only excel when you're content, when your brain is calm, because if a brain that is not calm cannot excel. Now, with all this business strategy happening around sports people, what do you think? Where do you think things are going wrong? Especially, I mean, cricket being like Itu said earlier, and it's not just a. I want to say one thing, like Sachin Tendulkar said very early in his career, that he started cricket just for junoon. Right. ठीक है ना? And जो पैसा आता रहा वो उसका जो प्रोसेस चल रहा था, पैसा ऑटोमेटिकली उसमें आता रहा. But because he was performing, he was totally focused on his cricket. Right. Follow करता रहा उसको. Which is his self discipline is amazing, because अगर आप धोनी को देखो, हम हमेशा कहते हैं that it is not your competence but your character which takes you beyond. तो अगर आप कंपेयर करो, since you spoke about Sachin, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि सचिन तो पानी कम क्रिकेटर है, पानी कम बैट्समैन है. The all-time great batsman of the world, much bigger than even Don Bradman in terms of talent and competence, is Vinod Kambli. ये उनके कोच आचरेकर बोलेंगे आपको, तेंदुलकर जानता है कि विनोद कांबली इज अ सुपर बैट्समैन. वो नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, पर कहाँ है आज? कैरेक्टर मिसिंग था. करेक्ट मिसिंग, बिल्कुल सच है. And that is what we always say, that it is not your competence and talent that takes you places and beyond. It is your character which takes you beyond, which came across so strongly in all the the insights that you were sharing with Itu, right? So you are now training people to become rugby players, and one of the things which I really paid attention to, and I must share this and articulate this as an insight, that as a coach, and this is a learning for all sports coaches, since sports pe mat dhyan do, get them to balance their studies, because if their academics are not there and they don't become a great sports star, then they should have some other opportunity in their life. है ना? Lot of coaches only focus on that, और वो बाद में मतलब कॉलेज के बाद वो कहीं पे भी नहीं है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है. And this is exactly, I'm told that one of the cricketers wanted to start an academy in his village, so he went to his to his school principal and said, I want your help to start an academy in the village. And the school principal told him, भाई साहब, don't start anything over here, लोगों का आप दिमाग खराब करोगे, वो सब सोचेंगे कि बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बनेंगे और कुछ मतलब करेंगे नहीं और लाइफ में. तो I mean, I think it is a little too extreme negative also, but there is wisdom in that if you just don't let people balance their life, that you have, yes, sports is good and it is very good for holistic development, but you also have to focus on your academics, and you have to focus on your other dimensions of life, failing which, if the sports doesn't work out, you should have some other alternatives. True. Is that what you're doing with the young kids that you're working with? We are doing same thing, and my aim is that only, because just like I told Ituji that I told specifically all the players that if you are not good enough in studies, then learn something. मतलब कोई craft सीखो आप, जो कि कल आप अगर इंडिया रिप्रेजेंट, वैसे भी रग्बी इज नॉट ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया, बट आप कह रहे हैं कि शायद पैसा आए इसमें थोड़ा बहुत, बट फिर भी रग्बी इज नॉट ए करियर इन इंडिया. तो मैं कहता हूँ भाई, आप पैशन तो अपना जियो, बट साथ में काम कोई ना कोई, ये तो हम शुरू से रखें बच्चों को. एंड देन वी वर वर्किंग विद एटलस फाउंडेशन फ्रॉम इंग्लैंड. हमें 1 साल हमारे एनजीओ प्रोग्राम में हेल्प किए. उनका भी एम ये था कि मतलब हम जिस भी स्कूल में रग्बी स्टार्ट किए, वी फॉलोड सर्टेन थिंग्स, लाइक हम उनके टीचर से इन टच रहे एंड पूछा उनसे कि भाई, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़े या कम हुए. एंड ये चीज हम ग्राउंड पे उनको बता के गए कि भाई, अगर आप पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे
तभी आपको ग्राउंड पे आने दिया जाएगा. Very nice, very nice. And the best coaches, they focus on that because you're not just teaching them the game, you're teaching them life. You're preparing them for life. So है ना? we did it practically. We went to school. मतलब जो भी हमारी जो टीम थी वो स्कूल जाती थी and सबके नंबर्स वगैरह नोट किए जाते थे. एंड देखा हमने कि भाई मतलब वो सही प्रैक्टिस था. एंड जो सच में ही गेम को फॉलो करने चाहते हैं, पैशनेट है, वो बेचारे पढ़े उस चक्कर में. पर आज मतलब उनमें से काफी लोग सक्सेसफुल है. दे आर Very डूइंग nice. जॉब्स, मतलब चाहे वो कुछ भी फिटनेस ट्रेनर बने हुए हैं या कहीं किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग गुड नाउ. तो Very अगर good. कोई कहता होगा 100 में से हम 10-20 लोगों को भी वहां उस जगह पे ले गए, तो मतलब ये काफी अच्छी सक्सेस है हमारे लिए. Right. Excellent. And that is very good. You know, in many schools, in many education systems, sports is seen as extracurricular. और मेरा मानना है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर है ही नहीं, ये को करिकुलर है. क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बढ़ाओगे तो स्टडीज में आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली मतलब बढ़ जाएगा. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है. बिल्कुल सच है ये तो. मतलब और देखो, आप दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है. आपको सिर्फ मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं, आपको फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए साथ में. And जब आप फिजिकली ग्रो करोगे तो मेंटली ग्रो कर ही जाओगे. The body is your temple. एंड दोनों थोड़ा अलग अलग है. लेकिन कहते हैं जब आप यू आर मेंटली टायर्ड देन गेट इनटू फिजिकल वर्क, व्हेन यू आर फिजिकली टायर्ड देन गो इनटू द मेंटल वर्क. तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हुए एक दूसरे के पूरक है. It is a balance. Very nice. Very true. मेरा मानना है. Or in a nutshell, you spoke about how you train people to make the mind strong. क्या फॉर्मूला है आपका? देखो, स्पोर्ट्स में क्या कहा जाता है, एक तो है परफॉर्मेंस विदाउट एनी प्रेशर. लेकिन गेम में सक्सेस होने के लिए जहां पे टाइटल के लिए लड़ाई आती है, सिर्फ इस एटीट्यूड से नहीं जाया जा सकता वहां पे. तो हम क्या करते हैं, टैलेंट, योर बेस्ट एफर्ट, बट अंडर प्रेशर, अंडर फटीग. जब आप दिमाग से काम करने बंद कर दियो, जब आपकी बॉडी जवाब दे चुकी है एंड लोग पीछे से प्रेशर बना रहे हैं टू परफॉर्म इन दैट सिचुएशन, तो प्रैक्टिस में भी हम वही एटीट्यूड रखते हैं. प्रैक्टिस में इतना प्रेशराइज रख देते हैं एंड गेम में उनको खुला छोड़ देते हैं कि जाओ, जो आप बात कह रहे थे, जाओ सिर्फ परफॉर्म करो, गिव योर बेस्ट. मेहनत जो हमने करनी थी वो हमने ट्रेनिंग में कर ली है. Whatever we wanted to do, we did in our training. अब सिर्फ एक्सप्रेस करने का टाइम है आपको. बराबर है. वेरी गुड. जितना प्रेशर उन्होंने झेलना था, हमसे ज्यादा प्रेशर कौन देगा. मैं तो इस मामले में थोड़ा ज्यादा सख्त हूँ, लेकिन मैं गेम में खुला छोड़ देता हूँ. कैप्टन को कहता हूँ आप जैसे अपनी टीम को खिलाना चाहो खेल लो, जो हमने जितनी स्ट्रेटेजी हमने तय बराबर है. बिकॉज over there you don't have a circle of influence. आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कोचिंग में है, प्रैक्टिस में है. गेम में तो आप घुस के मतलब खेल नहीं सकते. ठीक है ना. फ्रस्ट्रेशन भी होगी तो हम खेल नहीं सकते. ये है कि भाई उनको डिसीजन मेकिंग पावर में हम हेल्प करते हैं, बराबर है. आखिरी में उनका अपना डिसीजन अंडर फटीग, अंडर टेंशन, ठीक है ना, अंडर प्रेशर उन्होंने ही परफॉर्म करना. Very true. So you have to empower them because you know that you cannot do micromanagement in the game, and that's a great learning. You have to empower your children because you can't micromanage them for the rest of their life. So very great, good, Kuldeep ji. We will have you as one of our Mills mentors surely, where you will tell us your story of your transition from being a civil, officer to moving to rugby, playing the game, now coaching people. Great journey. Thank you so much. Pleasure learning with you and great learning with you. Thank you so much. Thank you so much for giving me this platform. You're welcome. Thank you so much. Tell my journey to all the people. Yes, Maybe thank you. Few of them took some good points from there. Surely, not hopefully, but surely, yeah. कमियां हमें भी बहुत हैं, तो मतलब we will try to overcome. हम तो कहते हैं कि कमियां सभी में हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना. Perfection is the biggest lie of the world. The truth of the world is continuous improvement. Perfection होगा तो आप कामली बन जाओगे. Continuous improvement होगा तो आप मतलब जाके you will get close to the best and keep excelling. Just evolving yourself, that's all. Absolutely.
And that is the crux of the Mojosh Inspirator learning, evolving mindful consciousness. कि खुद ही को कर इतना बुलंद है ना कि मतलब आप में खुदा है ना, Yes. और कहीं नहीं है खुदा, कोई स्वर्ग में या नर्क में नहीं बैठा है, आप में है. Thank you so much, sir. Have a great evening. Shukriya. Thank you so much. Thank you, Itu, and thank you, everybody. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.